So we're dealing with the classification of bryophytes. Bryophytes की classification में mainly तीन जो है वो सब divisions आती हैं, Hepaticopsida, Bryopsida और third आती है that is Anthoceropsida, जो कि हम इसके बाद discuss करेंगे. Hepaticopsida जो है in the common name है that is liverworts. 900 species से ज़्यादा जो है वो इसकी bryophytes की that fall in the Hepaticopsida. Simplest organisms है अपने group के, और हैबिटेट जो है मॉइस्ट रॉक है, डैम्प प्लेसेस वगैरह है, और इनके अंदर जो है वो वाटर की अगर डेफिशिएंसी हो तो दे कैन गेट मतलब उनकी डेथ हो सकती है, बट चूंकि रहते ही मॉइस्ट एरिया में इसलिए वाटर डेफिशिएंसी वगैरह जो है वो नॉर्मली देखने में नहीं आती. गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है इसकी, डायकोटोमसली ब्रांच्ड है. डायकोटोमसली ब्रांच की तो ये एक ब्रांच है तो ये फर्दर दो में डिवाइड करेगी, या आगे डिवाइड नहीं करेगी, लाइक ये एक ब्रांच है, इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. That can be equal, that could be unequal as well. और rhizoids मौजूद है for the anchoring and for absorption of minerals. और example है Markensia, Porella वगैरह examples हैं. उसके अलावा special branches of gametophytes. Gametophyte पे अगर special branches है for the production of eggs and sperms, तो antheridophores, antheridia के अलावा antheridophores जो है, these are the branches of gametophyte which are involved in the production of sperms. और archegoniophores which is involved in the production of eggs या ovum. So that's a simple detail about the Hepaticopsida. उसके बाद हम बात करते हैं मतलब Bryopsida. Bryopsida जो है these are the mosses. Mosses है और इसमें मतलब इसका जो है वो आप कह सकते हैं कॉमन नेम है that they are like mosses, like liverworts. Most mosses inhabit damp places. Habitat है in contrast they grow equally, यानी कि Hepaticopsida से थोड़े ज़्यादा modified है उनको अपने grow करने के लिए ड्राई प्लेसेस पर भी, ड्राई बिल्कुल ड्राई नहीं, फेयरली ड्राई प्लेसेस पर भी दे कैन ग्रो, और मॉइस्ट प्लेसेस पर भी ग्रो कर सकते हैं हैबिटेट में. थर्ड है अबाउट द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, वाटर जो है वो उनकी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है. उसके बाद फोर्थ है अबाउट द गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट में है ईच एडल्ट मॉस प्लांट. गेमेटोफाइट इज ऑलवेज डिफरेंशिएटेड इनटू स्ट्रक्चर्स व्हिच रिजेंबल टू स्टेम्स एंड लीव्स. स्ट्रक्चर्स जो है एम्फीबियन प्लांट्स में सॉरी अबाउट द गेमेटोफाइट, स्ट्रक्चरल similarity with stems and leaves. Rhizoids जो है multicellular है. उसके अलावा sex organs जो हैं they are also the archegonian and theridia. Example इसमें है Fineria, Polytrichum वगैरह. Then we talk about the paraphysis. Paraphysis जो है ये actually sterile hair है, sterile hair which are involved in the production of egg and sperm. फिर alternation generation है as in every group, हर group में आप देखेंगे about the alternation generation. Sporophytic give rise to gametophytic, gametophytic give rise to sporophytic generation. Then we'll have the protonema. Protonema जो है spore of a moss develops into an alga-like structure, the protonema. So आप इसको कह सकते हैं if it comes in any MCQ तो आप इसे कह सकते हैं it is like alga structure, alga-like structure कह सकते हैं. That is known as protonema. और ये जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ Bryopsida में भी जो है वो आपको देखने में मिलेगा. Haploid moss plants gametophyte develop from buds on the protonema and the life cycle is completed. जो gametophytic cells है like sperms and eggs, they are actually haploid, like obviously haploid होंगे, और they will give rise to the sporophytic generation. और उस केस में zygote जो है that will be two end diploid होगा. So that's all about the two groups. थर्ड डिवीजन हमारे पास है अबाउट एंथोसेरोप्सिडा, द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स. एंथोसेरोप्सिडा को हम हॉर्नवॉर्ट्स भी कहते हैं. ये जो कॉमन नेम्स हैं यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इन द एग्जाम. इसके जो है वो 4-5 बेसिक पॉइंट्स, स्लाइटली एडवांस डिवीजन है. उसके बाद हैबिटेट है. हैबिटेट में ये जो है वो मॉइस्ट प्लेसेस पे भी, डैम्प मॉइस्ट पे, और उसके अलावा जो है वो फेयरली ड्राई एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं. उसके अलावा थर्ड है अबाउट द गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट इज हाईली लोब्ड एंड इररेगुलर इन आउटलाइन. हाईली लोब है और रेगुलर इररेगुलर इन आउटलाइन. हाईली लोब्ड इज लाइक दिस के सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस, तो हाईली लोब्ड है और इररेगुलर सा है. लोब जो है बहुत ज्यादा और इररेगुलर अरेंजमेंट है उसकी. देन इट्स लाइक
Sporophytic generation है, sporophytic generation में it is not dependent upon gametophyte for nourishment and production. यहाँ पे जो है sporophytic generation का एक slightly advanced behavior है कि इसको अपनी nutrition के लिए और growth and development के लिए gametophytic generation पर depend नहीं करना पड़ता, and it exhibit many advanced characters due to which it can thrive better on land as compared to the other जो भी आपके पास groups हैं. Then when having the स्पोरोफिटिक जनरेशन के बारे में एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है दैट दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, अपना फूड खुद बना सकते हैं, सो दे आर नॉट बी नीडिंग गेमेटोफाइट इन एनी केस. उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम ये होता है दैट दे हेल्प इन द ग्रोथ में जो है वो हेल्प करते हैं बाय माइटोसिस. माइटोटिक डिविजन्स होती हैं. तो जो प्लांट बॉडी है या एक्चुअली बायोफिटिक बॉडी होती है एंथोसेरोप्सिडा की, उसको एक्सपैंड करने में जो है बहुत ज्यादा मदद करती है. Then we're dealing with the last topic of bryophytes, उसमें alternation of generations और उसकी significance. Alternation of generation है, बार बार मैं बता चुकी हूँ कि स्पोरोफाइट जो है gives rise to gametophyte और gametophyte जो है स्पोरोफाइट को राइज करती है. In the case of bryophytes, स्पोरोफाइट जो है ये less conspicuous है. उसकी वजह ये है that it is dependent on gametophyte. और in the case of bryophyte इसमें जो है फुट है, सीटा है और कैप्सूल होता है. और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल्टरनेशन जनरेशन में अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंस यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी, तो इंपॉर्टेंस हम इस तरह से डील कर लेते हैं दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफरेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स कि एनवायरमेंट जो हमेशा एक तरह का नहीं रहता. विद द पैसेज ऑफ टाइम एनवायरमेंट जो है वो चेंज होता है, और अगर जनरेशन जो है उसकी ऑल्टरनेशन नहीं होगी, या हम इस तरह बात कर लेते हैं कि जनरेशन की ऑल्टरनेशन होती है तो जो जेनेटिक मेकअप होता है इट गेट्स एक्सचेंज, और जो एक वेरिएशंस आ जाती हैं और रिकॉम्बिनेंट्स बन जाते हैं. जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं दे आर हैविंग बेटर चांस टू थ्राइव इन द एनवायरनमेंट. जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस आते हैं इन द स्पीशीज, और उस चेंजेस की वजह से जो सर्वाइवल होता है इन ऑर्गेनिजम्स का दैट बिकम ईजी विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट.